the Honorable Senior Vice President of Hyderabad Chamber of Small Trades and Small Industries. In your huge round of applause, Mr. Ahmed Idris Chauhan साहब. बहुत सारी तालियों में Mr. Ahmed Idris साहब. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for joining. Please come. आ जाएं, sir. Next up we have, ladies and gentlemen, who belongs to same Hyderabad Chamber of Small Trades and Small Industries. He is the Secretary General of this organization. In a huge round of applause, Mr. Furqan Ahmed Lodi Saab. Please, sir, please join us on stage. Thank you, sir. Is taraf aa jaओ, please. Sir, mics. Hello. Assalamu alaikum, sir. First of all, welcome to both of you in Mehran University of Engineering Technology, Jamshoro. सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप काइंडली थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा बताएं. फिर हम इंशाल्लाह सवालात की तरफ चलेंगे. प्लीज सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अहमद इदरीस चौहान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री. मैं बड़ी खुशी हुई है. पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें मदऊ किया. मैं अपनी छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ लाइफ की. प्लीज प्लीज सर. पहले हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे. मैं प्राइवेट तौर पे हमने अपनी मास्टर किया मैंने. मैं ये नए जो ग्रेजुएट हैं माशाल्लाह अल्लाह इनको हिम्मत दे. आप पढ़े लिखे बच्चे हैं. मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं, मैंने तकरीबन 17 कंपनियों में इंटरव्यू दिया था. तो आप डिसाइडेड नहीं होना, मेहनत से आप इंटरव्यू देना, काम करना. इंशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की देगा. अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक जहाँ पहुँचाया है अपनी मेहनत की वजह से पहुँचाया है. तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा जो नए आने वाले बच्चे हैं बच्चियाँ हैं, आपने पीछे नहीं हटना, बस घबराना नहीं है आपने. That's wonderful, sir. That's wonderful. Thank you. Thank you, sir. Furqan sahab, please, sir. Thank you very much. Myself, Furqan Ahmed Lodi, and I'm working as Secretary General of Hyderabad Chamber of Small Traders and Small Industry. I would like to give a short brief about what Chamber is and what does Chamber do. First of all, I would like to mention here that Chamber of Commerce and Industry, obviously, there are above 60 Chamber of Commerce and Industry in all over Pakistan, and around 12 to 15 Chamber of Small Traders and Small Industry. But unfortunately, there is only one chamber in Hyderabad which is registered by Ministry of Commerce and Director General of Trade Organization, and that is Hyderabad Chamber of Small Traders and Small Industry, from where we belong. The purpose of chamber is chamber plays a vital role for the facilitation between all the business community and the government institutions. One of the major problem which normally is faced by the business community, that government institutions of Pakistan, they do not hear them, they do not facilitate them, they do not remove the hurdles of their businesses. So what do? They get affiliated with the chamber, and chamber voice is heard, chamber voice is listened and implemented, the chamber's recommendations as well. So what does chamber do? जो तमाम traders और business community की voice है, उसके साथ उनको जो भी problems होते हैं, so we convey, we meet up, we find the solution, we give the recommendation to the government institutions. So through that what happened, we come on some solution way as well, because you know very well Pakistan economy is going down day by day. The only purpose, only thing which can lift Pakistan economy is to boost and facilitate the traders and business community. And let me tell you the purpose of our arrival here, why do we have the stall here and why we are here. First of all, I would like to congratulate all these newly fresh graduates, because I know, being a student, I have spent the same 4 years in degree as well. It is a tough job. It's a day and night hard work, 24/7 you have to go through, and with the great assistance and mentorship of your teachers, you finally get successful.
The purpose behind our arrival here is that, you know, chamber can facilitate you to get the good jobs. How? Because as being the only chamber in Hyderabad, Chamber of Small Traders and Small Industry is having 1500 memberships. And of course, we have the membership of companies, we have the membership of industries, we have the membership of traders. So how can we help you? हम आपकी मदद कैसे करते हैं तमाम fresh graduates की? We can get your CVs, or we can, with our back, with our support, we can forward to these industries, these factories and these companies to the recruitment department, HR department. So उससे क्या होगा कि obviously जब chamber का back आपके पास होगा तो obviously you will be dealt at the first priority, और उसके साथ आपको opportunities बेहतर मिलेंगी. Most of the time is obviously I had been the student, मुझे and I have been the teacher as well. So I listened the thing कि जब भी ग्रेजुएट करके कोई भी इंजीनियर फैक्ट्रीज में जाता है तो उसे अमूमन फैक्ट्री के गेट के अंदर भी दाखिल होने नहीं दिया जाता है. So I guess, but once you submit the CV through our channel, so obviously your voice will be heard. That's wonderful, sir. सर मेरा आपसे एक सवाल है कि आजकल हमारे पास जॉब्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स का एक रुझान बहुत ज़्यादा है. लाइक गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, NICs, नेशनल इंक्यूबेशन प्लान्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी की सपोर्ट में लेके आए जा रहे हैं. तो एक स्टूडेंट है जो कि अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है, जिसका कोई प्रोजेक्ट है, जिस तरह से आपके सामने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स के हैं, उसके अलावा भी हैं कुछ लोगों ने यहाँ पर आके भी हमारे साथ डिस्कस किया. तो हाउ हैदराबाद चैम्बर कैन सपोर्ट देम ताकि वो उसको स्केल अप कर सकें? आइदर इज देयर अ वे, और क्या तरीक़ेकार है उनके लिए कि ताकि वो आपसे जो है ना कांटेक्ट करें और वो किस तरह से आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं? प्लीज़. Okay, I would like to answer this. Then our senior vice president can add something in that. Chamber किस तरह से सपोर्ट कर सकता है? देखिए, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे होते हैं, whenever they offer anything to the new entrepreneurship or new business community, so क्या होते हैं, वो चैम्बर से लिंक करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स इन द सिटीज़. मैं अब रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ आपको. यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनेडो. यूनेडो का भी रिसेंटली हमारे पास पिछले वीक में प्रोग्राम हुआ. उनकी ग्रांट है 11,000 यूरो से लेकर 2 लाख यूरो तक. वो तमाम उन्हीं लोगों के लिए जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो बिजनेस आइडियाज़ रखते हैं, बट वो स्पेसिफिकली लिमिटेड है 5 शहरों के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Like, but they are welcoming all the people from all over Pakistan. I guess they can bring their business idea. The biggest thing is that ये grant है, it is not loan. So obviously जब आप चैम्बर के प्लेटफॉर्म से उसको अप्लाई करेंगे, so आपकी एप्लीकेशन जो है वो obviously ज़्यादा पार्टी बेस्ड होगी और आपको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी. इसी तरह से चैम्बर काम करता है सेमेटा के साथ भी, जो ऑफ कोर्स बिजनेस लोन प्रोवाइड करती है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. इसी तरह चैम्बर काम करता है टिडेप के साथ भी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी. तो चैम्बर से एफिलिएशन इन तमाम स्टूडेंट्स की भी और तमाम नए एंटरप्रेन्योर्स की भी तकरीबन यंग जनरेशन से अंडरस्टैंड. और हम लकी हैं, बट ऑब्वियसली वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम एंड वी आर वेरी अनलकी. वी कैन नॉट प्रोवाइड देम जॉब अपॉर्चुनिटीज. हमें वही काम करना है. राइट सर, दैट्स ट्रू. सर आपसे बेसिकली मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी ग्रेजुएट हुए हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जा रहे हैं. तो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स या हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज़ किस तरह से काम करता है उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए ताकि वो हैदराबाद चैम्बर की तरफ आएँ? आइदर कुछ जैसे टेक शोज़ हम करवा रहे हैं या इस तरह के कोई इवेंट्स करवा कर या लोगों के पास इन पर्सन जाकर, तो आप लोगों को किस तरह से हंट डाउन करते हैं वो आपकी तरफ आए? मैं आपको बताऊं कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको हमारा एंड टू एंड की आपको ज़रूरत होगी. तो हैदराबाद चैम्बर में हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसमें आप जाएं, आपको सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे. उसमें आपको एंड टू एंड की फैसिलिटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं, इसमें इतने चार्जेस नहीं हैं. इसके अलावा समेटा के साथ हमारा कॉन्टेक्ट होता है और दूसरे काफ़ी सारे NGOs हैं जो हम आपको हेल्प कर सकते हैं. अगर वो हमारे पास आए तो इंशाल्लाह हम उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देंगे. और जो मिल्स हैं उनकी भी काफ़ी वैकेंसीज़ वगैरह हमारे पास आती हैं.
तो हम अच्छा, क्योंकि स्टार्ट ही आपने चैम्बर से होना है, आपका एनटीएन होगा, फिर एसटीएन होगा, जो आपको रूट जो चलने का वो इंशाल्लाह अच्छा हम प्रोवाइड करेंगे। राइट सर। सर एक चीज़ थोड़ी सी मैं समझना चाहता हूँ स्टूडेंट के तवज्जुह से, बहुत सारे लोग हमें इस वक्त लाइव यूट्यूब पर देख भी रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स कुछ हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं वक्तन वक्तन। एक छोटी सी चीज़ है कि हमारे पास स्टूडेंट मेहनत तो करता है, अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, लेकिन उस स्टूडेंट के अंदर स्टिल ट्रेनिंग्स की और गाइडलाइंस की कमी होती है। तो क्या हैदराबाद चैम्बर के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो स्केल अप करवाने के लिए बिजनेस में, बिजनेस आइडियाज़ के लिए उनको ट्रेनिंग्स और इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें? देखिए, हमारे माशरे का सबसे बड़ा इशू ये है कि वी आर गिविंग एजुकेशन बट वी आर अनेबल टू कनेक्ट देम विद द इंडस्ट्रीज एंड जॉब एम्प्लॉयमेंट्स। अब चैम्बर जो है वो ऑफ कोर्स जैसे एनआईसी इदारा है, इसी तरह से जितने भी दूसरे इदारे हैं, चैम्बर इज ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विद देम। सो चैम्बर क्या करता है कि चैम्बर अपने प्लेटफॉर्म्स पर, चैम्बर उनके प्लेटफॉर्म्स पर चैम्बर के इश्तराक के साथ प्रोग्राम्स करता है, ट्रेनिंग सेशंस करवाता है। सो ऑब्वियसली जो नए आने वाले बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडियाज़ रखते हैं, नए बिजनेस प्लान, ऑफ कोर्स आज की दुनिया इनोवेशंस की है, आइडियाज़ की है, देखें जो आइडिया बेहतर सेल कर सकता है वही आगे चल सकता है। तो चैम्बर उसको इसी तरह से फैसिलिटेट करता है। जैसे सर ने कहा कि चैम्बर की मेंबरशिप क्यों ज़रूरी है, मैं आपको एज अ सेक्रेटरी जनरल थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ क्या तरीकाकार होता है। देखें, चैम्बर की मेंबरशिप ऑफ कोर्स हर बिजनेस कम्युनिटी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप जब भी अपना बिजनेस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बैंक आपकी मेंबर की मेंबरशिप मांगता है। उसके बाद जब भी आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करनी है, उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अटेस्टेशन चैम्बर करके देता है। उसके साथ आपको बैरून मुल्क जाना है, एम्बेसी ऑफ कोर्स पाकिस्तान का स्टेटस सबको मालूम है, लेकिन ऑफ कोर्स चैम्बर जो एक बैनुल-अक़वामी रिकग्नाइज इदारा होता है, उसके रिकमेंडेशन लेटर को तमाम एम्बेसीज वैल्यू देती है और आपको उसको फैसिलिटेट करती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेज हैं चैम्बर की मेंबरशिप के हैं। राइट सर। सर एक छोटी सी चीज़ जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि हमारे पास इंडस्ट्रीज इज द हब जो कि ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? एंड जिस तरह से आपने बताया कि वी हैव मिसिंग लिंक टू कनेक्ट विद इंडस्ट्रीज, जिसमें चैम्बर बहुत अच्छा काम कर सकता है और कर भी रहा है। तो डोंट यू थिंक कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक होना चाहिए? जैसे हमारे पास ओरिक है ऑलरेडी जो कि इस चीज़ के ऊपर काम कर रही है, बट चैम्बर ऑफ कॉमर्स बीइंग एसोसिएटेड विद द कॉमर्स मिनिस्ट्री इज़ अ बिगर प्लेटफॉर्म जिसमें ज़्यादा ग्रेजुएट्स अकोमोडेट कर सकता है, ज़्यादा हमारे पास बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमें किस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ? देखिए, इस चीज़ की तो बहुत कमी महसूस की जाती है कि मेनार कोई भी यूनिवर्सिटी है इसका अलाक होना चाहिए चैम्बर्स के साथ, तो इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में इस किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम रखेंगे जो हमारी दूरियां हैं वो करीब की तरफ आए और नए ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए भी इंशाल्लाह आसानियाँ पैदा करें। सर, वन ऑफ थिंग हैज़ बीन शेयर्ड विद मी कि हमारे पास एक इनिशिएटिव है हमारी ओरिक का, ओरिक म्यूट ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन हमारे पास जो है कि लैब टू मार्केट हम करना चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स लैब स्केल के होते हैं, लेकिन उसको स्केल अप करके मार्केट स्केल हम करना चाहते हैं। तो एक मेरे साथ पैम्फलेट भी मेरे पास अवेलेबल है कि यहाँ पर हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो हमारे पास आज आपने सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं। इट वुड बी वेरी नाइस अगर आपकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारे पास वेबसाइट है वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा अगर रिकग्निशन दी जाए तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बेनिफिट मिलेगा कि उनके प्रोडक्ट्स एक आपके बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू मार्केट हो सकते हैं। तो आई वुड बी रियली लव टू शेयरिंग विद दिस कि आपकी जो QR कोड है इससे आपको सारे हमारे जो आज के प्रोडक्ट्स हैं, जो सारी लैब बेस्ड चीज़ें हमारे पास ये मिल जाएंगी ताकि ये इनिशिएटिव हमारा लैब टू मार्केट हो सके। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आपकी तरफ से इसके ऊपर कुछ हमारे पास फिजिबिलिटी हो। Very first, I would like to thank the Mehran University and its all management. This is very first time कि we are interacted with Mehran University, but I would like to tell you that हम already ISRA University and GCC University के साथ coordination के अंदर हैं और इसके साथ I would like to tell you that चैम्बर स्टूडेंट्स की किस तरह से मदद कर सकता है जो आपका ये प्रोग्राम है। देखें,
वी आर द प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम तमाम इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकते हैं. वी कैन ऑफर द ट्रेनिंग सेशन और इवन द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ऑल द स्टूडेंट जो अपनी नई इनोवेट कर रहे हैं. सो इवन हम उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं कि वो देखें. तमाम फैक्ट्री सब चीज़ें इनोवेशन के बगैर तो कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता. कब तक हम वही ह्यूमन लेबर के साथ काम करते रहेंगे. नाउ वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर AI हैज entered and you know that as a educationist and of course as a chamber person, I would like to tell you that AI cannot replace you or your job, but a person with AI information can surely replace your job. So अब हमें इसके ऊपर काम करना है और इसी के साथ हम चाहेंगे कि मेरान यूनिवर्सिटी के साथ हम आगे भी एफिलिएटेड रहें और इसके साथ काम करें. इनके स्टूडेंट्स को हम अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करें और इनका कनेक्शन कराएं तमाम इंडस्ट्रीज से, कंपनी से, ताकि वो उसको प्रेजेंटेशन दें और नई रिक्रूटमेंट और नई अपॉर्चुनिटीज पैदा करें. Wonderful, sir. That's so nice of you. We have Deputy Director ORIC, Sir Arif Jalwani sahab, and we would love to have him with you after this podcast, inshallah, sir, for further commercialization of this. अब सर क्विकली मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, पहले आप सर फिर आप भले, कि जो है ना हमें एक क्विक आज की जो हमारे ये करियर फेयर है सर, इसके लिए आपके पास कुछ, आपकी तरफ से कुछ कमेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए, खुसूसन हमारे पास जो न्यू ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई शॉर्ट मैसेज सर. मुझे मेरा पहला विज़िट है और मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि ये माशाल्लाह आज ये इन्होंने जो पास किए उनमें मैं फ्यूचर में जो हम आज से 40 साल पहले जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी नहीं थी आज नए इनके पास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह सर. सर प्लीज. My message to all the youngsters, the newly this one graduates, देखें, I would like to remind them कि जब वो पहले ख्वाब था उनका मेरान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का. More than 10,000 people they give placement tests of Mehran University. True. And Mehran University almost picks only 2,000. Sir, around 2,000, yes. Around 2,000. And first of all, you must remember your dream has come true. As you people have graduated from Mehran University, this has been the dreams of lakhs of people, but it has come to your way. Next thing, education and your skills are now, I guess you are in the practical life. So don't give up. You may face lots of hardships and lots of problems, but of course, that our religion, Holy Quran says us the biggest message from Holy Quran is of course hope. Be optimist. So optimism अपना कायम रखें और इसके साथ अपने ideas को पेश करें और let's explore the world. I guess. That's wonderful, sir. Thank you so much. With this, we would end this session. And thank you so much, sir. We are really hopeful कि आगे भी इंशाल्लाह हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे. Thank you so much, sir. Thank you so much. So nice of you. जी जी, sure. Please let's have a group photo, please. आ जाए sir. Sir Arif साहब, please join करें sir. We would love to have a group photo. Sir Pradeep साहब, please.